Welcome to Blessing Today Morning Glory. ब्लेसिंग टुडे मॉर्निंग ग्लोरी में आपका स्वागत करते हैं। This year, by the grace of God, this is in 3 languages: English, Malayalam, and also in Hindi. इस साल प्रभु के अनुग्रह से हम 3 भाषाओं में आ रहे हैं, इंग्लिश, मलयालम और हिंदी में। And every morning we are coming to wherever you are, in your house, in your villa, apartment, in your workplace, or even when you are on the go. अब जैसे कि हम आप तक पहुंच रहे हैं, चाहे आप घर पर हों, अपार्टमेंट में हों, अपने काम पर हों या फिर यात्रा कर रहे So हों। make this a habit. Take a cup of black tea or black coffee or some drink and take your Bibles, notebooks and get ready for the morning devotional every day. आप इसकी आदत बना लें, चाहे आप चाय लें, कॉफी लें या फिर कोई भी ड्रिंक लें, लेकिन मॉर्निंग डिवोशन के लिए हमेशा आप तैयार रहें। And I believe this year in 2021, the Lord is going to make this year an amazing year with a greater move of God in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि इस साल 2021 में परमेश्वर इस साल को अद्भुत साल बनाए और आपके जीवन में महान कार्य करे। And these days we are trying to learn about a person, the third one in the Holy Trinity, the most powerful personality today on the face of the earth, the Holy Spirit. इस साल हम अध्ययन कर रहे हैं एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति के बारे में, त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति, सबसे ज्यादा सामर्थी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है, वो है पवित्र आत्मा। If you recently joined, I request all of you to journey with us and ask your friends and foes also to join in this journey. अगर आप इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने साथियों और मित्रों के साथ हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ जाएं। So these days we were discussing about the Holy Spirit. अभी इन दिनों में हम लोग पवित्र आत्मा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। We are all so privileged to live in this dispensation, the era of the Holy Spirit. हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि हम इस समय पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं। And we also saw that today on the face of earth, the most important person, the most powerful person is the Holy Spirit. और हम ये भी जानते हैं कि इस समय इस पृथ्वी पर सबसे सामर्थी और सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो है पवित्र आत्मा। And we also saw the Trinitarian functionality in which God the Father is initiating everything, God the Son is into the execution part, but the final operation will be always by the Holy Spirit. और हमने देखा कि त्रिएकता में पिता परमेश्वर उस काम की शुरुआत करते हैं, पुत्र परमेश्वर उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनल ऑपरेशन होता है वो तो हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। और इसी तरह ये त्रिएकता आपस में मिलकर हमेशा एक दूसरे के साथ काम करते हैं। And today I'm going to focus on the total dependence on the Holy Spirit. और आज मैं पूरी रीति से पवित्र आत्मा पर आधारित कैसे रहते हैं इस पर बात करूंगा। So if you have a notebook, just write down total dependence on the Holy Spirit. और अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो उसमें लिखिए पवित्र आत्मा पर पूरी तरह से आधारित होना। I have mentioned this many times. Jesus in his earthly life was totally dependent on the Holy Spirit. मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तो वो अपने जीवन में पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर आधारित थे। His conception was by the Holy Spirit. उसकी जो गर्भधारणा हुई थी वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुई थी। His growth was in the Holy Spirit. उसकी उन्नति पवित्र आत्मा के द्वारा हुई थी। And every phase of his human life was orchestrated, empowered, strengthened, organized fully, perfectly by the Holy Spirit. उसके मानवीय जीवन का हर एक आयाम जो था वो तय किया हुआ था, क्रमबद्ध तरीके से सामर्थ पाया हुआ, बल पाया हुआ केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही। Jesus lived on earth just 33.5 years. यीशु तो इस पृथ्वी पर केवल 33.5 साल ही And जिए। many of us are older than Jesus. हम में से तो कई लोग उम्र में यीशु से बड़े होंगे, But the first 30 years, Jesus was living on earth
an ordinary life. He never did any miracle. He never preached the kingdom of God. He never did any sign or wonder or anything. But he modeled a perfect human life. It was by the Holy Spirit. लेकिन यीशु ने अपने जीवन के पहले 30 साल में इस पृथ्वी पर एक सामान्य सा जीवन जिया। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार नहीं प्रचार किया, उन्होंने कोई चिन्ह, चमत्कार या कोई अद्भुत काम भी नहीं किए, लेकिन वो एक केवल सिद्ध मानव के रूप में आदर्श बने। और ये तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव हो पाया कि वो मनुष्य जाति का आदर्श बने। Now, where is your Bible? Just open it at Luke chapter 3. आप अपनी बाइबल में निकालिए लूक का अध्याय 3। आइए इसे हम पढ़ेंगे। Verse number 21. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice from heaven, "You are my son, whom I love. With you I am well pleased." वचन 21। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। Now, Jesus is getting ready for his public ministry. अब यीशु लोगों की सेवकाई के लिए तैयार हो रहे थे। His total life is just 33 and a half years. और उनकी यहाँ पर पूरी उम्र जो थी वो थी 33.5 साल। 30 years he spent for his family. 30 साल परिवार के साथ बिताए। Just like an ordinary Jewish young man. बिल्कुल एक सामान्य यहूदी जवान के जैसे। But the tithe, 1/10 of his total life was set apart for the ministry. लेकिन इनके जीवन का 10वां जो भाग था वो पूरा सेवकाई के लिए इन्होंने बिताया। And when he was about to get into that ministry, that changed the whole world. Here comes the Holy Spirit. लेकिन जब वो सेवकाई के लिए निकल रहे थे, यहीं पर तो पूरे संसार के लिए बड़ा बदलाव आया, क्योंकि इसी समय तो पवित्र आत्मा आया था। Jesus was formed in the Holy Spirit. यीशु मसीह की गर्भधारणा पवित्र आत्मा के द्वारा हुई थी। He was growing in stature in the Holy Spirit, in wisdom and favor. वो डील डोल में बढ़ते चले गए, पवित्र आत्मा में बुद्धि और कृपा में बढ़ते चले गए थे। But he wanted more of the Holy Spirit to do what was commissioned, what was assigned to him by the Father. देखिए, वो पवित्र आत्मा से इतना भरना चाहते थे कि उनके जीवन के लिए जो परमेश्वर की इच्छा थी उसे पूरा करना चाहते थे। So Jesus was never alone in this world. यानी यीशु इस संसार में अकेले नहीं थे। Even on the cross, when the Father turned his face, even at that time, the Bible does not say that this doubt, the Holy Spirit left him. No. He was always there, even through the passion, the crucifixion, his death, as his resurrection, ascension. Always, the Holy Spirit was with the Son. यहाँ तक कि क्रूस पर जब पिता ने उससे मुंह फेर लिया था, उस समय भी बाइबल ये नहीं कहती कि पवित्र आत्मा ने उसे छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उसके दुख सहने, मृत्यु, पुनरुत्थान और उठाए जाने तक, यहाँ तक कि हर हाल में पवित्र आत्मा उसके साथ बना रहा, उसके संग संग रहा और किसी भी समय उसे कभी भी अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा। Now, why am I sharing all these things with you? अब मैं ये सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूँ? Brother, you are talking about the Son of God. भाई, आप तो परमेश्वर के पुत्र के बारे में बता रहे हैं। No, I am also talking about you, talking about us. नहीं, मैं इसे आपके और अपने बारे में बता रहा हूँ। God the Son, Jesus Christ was God himself. पुत्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर ही थे। But still he wanted the Holy Spirit in his life. लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में पवित्र आत्मा चाहते थे। Jesus was totally dependent on the Holy Spirit. यीशु मसीह पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर ही आधारित थे। Now the same Jesus is now
asking us to have this helper or this Holy Spirit in our lives. अब वही यीशु हमसे चाहते हैं कि यही पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ बनी रहे। आमीन। Luke chapter 24 verse number 49. अब आइए बाइबल में से देखते हैं लूका अध्याय 24 और वचन 49। Jesus is now talking to his disciples and he is saying, I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग में से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। So after Jesus leaving this world, it was a time of the apostles to work in this world, to minister to the Lord. देखिए जब यीशु इस संसार से चले गए तो उसके बाद का जो समय था वो था प्रेरितों का समय, इस संसार में काम करने का, सेवकाई करने का। And Jesus warned them and Jesus instructed them, do not leave this city. That means the city of Jerusalem. Do not leave this place because I'm going to send you what my Father has promised. यीशु ने उनसे कहा कि तुम इस नगर को छोड़कर कहीं मत जाना। कौन सा नगर? ये यरूशलेम नगर की बात हो रही है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। Do you know that the Holy Spirit is the best promise from the Father? क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा सबसे उत्तम प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दी है। We have hundreds of promises in the Bible. ऐसी बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं बाइबल में। Not hundreds, thousands. ऐसी 100 नहीं हजारों। But maybe the best promise today that God the Father has given us is the promise of the Holy Spirit. लेकिन आज जो सबसे उत्तम प्रतिज्ञा है परमेश्वर पिता ने जो हमसे प्रतिज्ञा की है वो है पवित्र आत्मा। As we are having this study, this series on the Holy Spirit, I believe God the Father is going to give that promise to you if you have not received Him yet. जैसे कि हम अध्ययन कर रहे हैं इस पवित्र आत्मा की सीरीज पे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता आपको ये वरदान देने जा रहे हैं। अगर आपने इसे अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो आप इसे पाने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर पिता इसे आपको देना चाहते हैं। So Jesus is asking his disciples now, do not leave the city, stay here until you have been clothed with power from on high. तो देखिए यीशु अपने चेलों से यहाँ पर कहते हैं, तुम इस नगर को छोड़कर मत जाना जब तक स्वर्ग से तुम सामर्थ ना पाओ, तुम यहीं पर रहना। हालेलुया। Hallelujah. So it is an empowering experience. तो देखिए ये जो अनुभव था ये सामर्थ पाने का अनुभव था, सामर्थ को प्राप्त करने का अनुभव। Remember, without the Holy Spirit for spiritual life, we are completely powerless and weak. याद रखें आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा के बिना पूरी तरह से सामर्थहीन होता है, वो एक कमजोर आत्मिक जीवन होता है। See, you have a very good mixie in the kitchen, but if the electricity is not there, what is the use of that? जैसे कि आपके पास किचन में बहुत अच्छी मिक्सी है लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। In the same way, if the power of the Holy Spirit is not working in our lives, we are nothing. We are powerless and useless. इसी तरह से पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं हैं, हम बिल्कुल बेकार हैं। An amazing verse I'm going to show you now. एक अद्भुत वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। This is 1 Corinthians chapter 12 verse number 3. पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 3 में से मैं आपको बताऊंगा। Therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ
कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। The second part of that verse is very important. No one in the world can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. इस वचन का जो दूसरा भाग है वो ये कहता है कि ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। I think yesterday I was reading from Psalm 139, the omnipresence of the Spirit of God. मैं कल ही भजन संहिता 139 में से पढ़ रहा था परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति के विषय में। Hallelujah. हालेलुया। So the Holy Spirit is everywhere. तो पवित्र आत्मा हर जगह पर है। If a person should repent of his sins in any place, he needs the Holy Spirit. यदि कोई व्यक्ति कहीं पर भी अपने पापों का पश्चाताप करता है तो उसे पवित्र आत्मा की जरूरत है। यदि आप कहीं पर भी हों, अपने पापों से पश्चाताप करें। Because it is the Holy Spirit who convicts us of our sins. क्योंकि केवल पवित्र आत्मा ही है जो हमें अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए कहता है। But if you want to confess that Jesus is my Lord, you need the Holy Spirit. यदि आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, तो आप पवित्र आत्मा की ही सुनते हैं। Just think of that for everything that is connected to your spiritual life, Christian life. आमीन। You need the Holy Spirit. We are totally dependent on the Holy Spirit. बस इसे सोचिए कि आपके आत्मिक से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, आपके मसीह जीवन से, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर ही आधारित होते हैं। Acts chapter 1 verse number 8 says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you'll be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." प्रेरितों अध्याय 1 वचन 8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। Recently a man of God came to our house. अभी की बात है कि एक परमेश्वर के दास हमारे घर पर आए And he was saying his experience with me. और वो मुझे अपना अनुभव बता रहे थे। One day the Holy Spirit spoke to him and said, "Without the Holy Spirit you can never be a witness of Jesus Christ." कि पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि पवित्र आत्मा के बिना तुम यीशु मसीह के गवाह नहीं ठहर सकते, तुम यीशु मसीह के गवाह नहीं हो सकते। Why? क्यों नहीं? What is the reason? क्या कारण है? And the Holy Spirit himself gave him a revelation. पवित्र आत्मा ने खुद ही इन्हें प्रकाशन दिया। It was the Holy Spirit who was an eyewitness to Jesus' conception, his growth, his life, his ministry, and every stage of his life on earth. So without that Holy Spirit, you can never be a witness because he is the eyewitness. क्योंकि पवित्र आत्मा ही तो एक आंखों देखा गवाह था यीशु की विचारधारा का, उसके बड़े होने तक का, उसके जीवन का, उसकी सेवकाई का, इस पृथ्वी पर रहते हुए उसके जीवन के हर एक पहलू का। तो इसीलिए उस पवित्र आत्मा के बिना आप कभी भी गवाह नहीं हो सकते, क्योंकि वही जो था वही तो एक आंखों देखा गवाह था जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, उसके सारे जीवन काल का। So even for witnessing, sharing the gospel with others, we need him. यहाँ तक कि जब हम प्रचार करते हैं, वचन बताते हैं लोगों को, उस समय भी हमें इस पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। दूसरों के साथ सुसमाचार सुनाते वक्त भी हमें उसकी जरूरत है। So for repentance, to confession, to sharing about Jesus, for everything we need His assistance. आमीन, हालेलुया। पश्चाताप से अंगीकार तक, यीशु के बारे में बताने के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक चीजों के लिए, हर एक चीज में हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। Can I ask you a question? क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? Who is the author of the Bible? ये जो बाइबल है, बाइबल को किसने लिखा है? We say 36 to 40 people from Moses to
John the Apostle are the authors, but the Bible says every scripture is God breathed or the Holy Spirit breathed. The real author of Jesus. the Bible is the Holy Spirit. आमेन, हालेलुया। हम कहेंगे कि 36 से 40 लोगों ने शायद लिखा है, मूसा से प्रेरित यूहन्ना तक शायद उन्होंने लिखा हो, लेकिन बाइबल हमें बताती है हर एक वचन जो लिखा गया पवित्र आत्मा की सांसों से और परमेश्वर की सांसों से ये वचन लिखे गए थे। बाइबल पवित्र आत्मा की सांसों के द्वारा और परमेश्वर की सांसों के द्वारा लिखी गई थी। ये परमेश्वर का जो पवित्र वचन है ये हम तक इसी तरह से पहुंचा है, इसलिए ये जो वचन है ये इतना पवित्र And है। he is the best and he is the authorized Bible teacher or Bible professor. इसलिए तो वही एक अच्छा शिक्षक है और अच्छा प्रोफेसर है जो हमें बाइबल सिखाता है। Hallelujah. आमीन। So without the Holy Spirit we would never have Bible. तो पवित्र आत्मा के बिना आज हमारे पास बाइबल नहीं होती। Without the Holy Spirit, nobody can be born again, nobody can confess, nobody can repent. So without the Holy Spirit, there would be no believer on earth. पवित्र आत्मा के बिना ना ही किसी ने पश्चाताप किया होता, ना ही अंगीकार किया होता, ना ही किसी ने उद्धार प्राप्त किया होता और ना ही आज यहाँ पर कोई विश्वासी हुआ होता। And without the Holy Spirit, nobody can pray. If you are praying without the Holy Spirit, it will not reach there. Amen. According to Romans 8:26, we don't know how to pray. We need the Holy Spirit to come inside of us to give us to start the prayer engine. पवित्र आत्मा के बिना कोई प्रार्थना भी नहीं कर सकता था। अगर आप पवित्र आत्मा के बिना प्रार्थना करते हैं तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचती। रोमियो 8:26 के अनुसार हम नहीं जानते कि हम प्रार्थना कैसे करें। हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए ताकि हम प्रार्थना करना सीखें। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है कि हम किस तरह से प्रार्थना करें, पिता से प्रार्थना मांगें। Without the Holy Spirit, there would be no church at all. पवित्र आत्मा के बिना कोई चर्च नहीं We होता। have hundreds and thousands of churches, millions of churches around the globe. But without the Holy Spirit, no church will be formed. हो सकता है हजारों लाखों चर्च बने हों, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता के बिना कोई भी चर्च खड़ा नहीं हो सकता। Without the Holy Spirit, no revelation. पवित्र आत्मा के बिना कोई प्रकाशन नहीं होता। Without the Holy Spirit, nobody will have any direction. पवित्र आत्मा के बिना किसी को कोई दिशा नहीं मिलती। Do you know something? क्या आप जानते हैं? In 2020, when we were having the global pandemic and the lockdown seasons, जी हाँ, in my knowledge, all the churches were still functioning, even though they were not gathering in some cathedral or some auditorium in a hall. All these churches were functional because the Holy Spirit is everywhere, in homes and in small places. Churches were growing. जब पूरी दुनिया में पैंडेमिक का समय था, महामारी का समय था, लॉकडाउन का समय था, जैसे कि मैं जानता हूँ सारी चर्चेस चल रही थीं। हालांकि लोग किसी स्थान में जमा नहीं हो पा रहे थे, किसी ऑडिटोरियम में या हॉल में, सभी चर्चेस फिर भी काम कर रही थी क्योंकि हर जगह पर पवित्र आत्मा था। घरों में, हर एक छोटी छोटी जगहों पर, और जो कलीसियाएं थी वो बढ़ रही थी। ये सब कुछ जो भी हो रहा था ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो रहा था, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हो रहा था। See, without the Holy Spirit, no children's ministry, no Sunday school. Our Sunday school is known as Wonder Kids. No Wonder Kids without the Holy Spirit. If the Holy Spirit is not working, what wonder, what kids? पवित्र आत्मा के बिना कोई संडे स्कूल नहीं होता, कोई बच्चों की सेवकाई नहीं होती। हमारा संडे स्कूल वंडर किड्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना ये सब कुछ नहीं हो पाता। Without the Holy Spirit, no worship song. पवित्र आत्मा के बिना कोई स्तुति आराधना के गीत नहीं। Because He should give us lyrics. He should
give us songs downloaded from heaven. क्योंकि वही तो हमें लिरिक्स सिखाता है, गीत सिखाता है, और वही हमें बताता है कि हमें स्वर्ग से किस तरह से हमें स्तुति आराधना के गीत जो हैं वो डाउनलोड कैसे करें। So without the Holy Spirit, no songs, no lyrics, no songwriter, no singer, no vocalist, no instrumentalist, no worship albums will be released, no worshipper, no worship leader, no orchestra, nothing. पवित्र आत्मा के बिना कोई गीत नहीं, कोई लिरिक्स नहीं, कोई गीत लिखने वाला नहीं, कोई गीत नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नहीं, कोई सिंगर नहीं, कोई एल्बम रिलीज नहीं, कोई आराधना नहीं, आराधना करने वाला नहीं, और कोई भी ऑर्केस्ट्रा नहीं, और कुछ भी नहीं हो सकता पवित्र आत्मा के बिना। Without the Holy Spirit, no pastor, no evangelist, no prophet, no apostle, no teacher, no minister, no fivefold ministry, nothing in this world. पवित्र आत्मा के बिना कोई पास्टर नहीं, कोई सुसमाचार प्रचारक नहीं, कोई प्रेरित नहीं, शिक्षक नहीं, पवित्र आत्मा के बिना किसी भी प्रकार की कोई सेवकाई नहीं। Somebody say, I'm totally dependent on the Holy Spirit. कोई कहे कि मैं पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर निर्भर हूँ। Without the Holy Spirit, no evangelization, no tract distribution, no crusade, no convention, no public meeting, no fasting prayer, nothing. पवित्र आत्मा के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता, कोई ट्रैक्स नहीं दे सकता, क्रूसेड नहीं, कन्वेंशन नहीं, पब्लिक मीटिंग्स नहीं। Without the Holy Spirit, no fruit of the Holy Spirit, no gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बिना कोई पवित्र आत्मा का फल नहीं, उसका वरदान नहीं। Without the Holy Spirit, no life change. पवित्र आत्मा के बिना कोई जीवन नहीं बदलता। Without the Holy Spirit, nobody will have any testimony to share. पवित्र आत्मा के बिना कोई गवाही नहीं बता सकता। Without the Holy Spirit, no missions in the world. पवित्र आत्मा के बिना इस दुनिया में कोई लक्ष्य नहीं होता, Because He is the mission director. क्योंकि वही तो लक्ष्य निर्धारित करने वाला डायरेक्टर है। Because the Holy Spirit will instruct, Mr. Paul, don't go to Asia, you have to go to Macedonia. क्योंकि पवित्र आत्मा ही बताता है, मिस्टर पौलुस, तुम आसिया में मत जाना, तुम्हें मकीदुनिया में जाना है। ये तो केवल पवित्र आत्मा ही बताता है। Without the Holy Spirit, no Bible seminary, no Bible school, no Bible college, no Bible university. पवित्र आत्मा के बिना कोई बाइबल सेमिनरी नहीं, कोई बाइबल स्कूल नहीं, बाइबल कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं। Without the Holy Spirit, no harvest of souls. पवित्र आत्मा के बिना कोई फसल की कटनी नहीं। Hey, without the Holy Spirit, there would be no revival in the world. पवित्र आत्मा के बिना इस संसार में कोई जागृति नहीं होती। Without the Holy Spirit, we are nothing. पवित्र आत्मा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं हैं। Lift up your hands everywhere. हर कोई अपने हाथों को उठाए। Pray this prayer after me. Holy Spirit, I need you. मेरे साथ ये प्रार्थना करें और कहें, पवित्र आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है। I am totally dependent on you. मैं पूरी तरह से तुझ पर ही निर्भर हूँ। Lord, come and help me. प्रभु आ और मेरी सहायता कर। आमीन।